حدیث نمبر 701 حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ نمازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، بس لوگ مجھے گور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ہائے ماں کی جدائی۔ یہ محاورہ عرب ہے جس کا مقصد بد دعا نہیں۔ تمہیں کیا ہے کہ تم مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ بس وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئی، بس میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ جیسا معلم استاذ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد جو آپ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا ہو۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ سب و شتم کیا، صرف اتنا فرمایا بے شک یہ نماز ایسی چیز ہے، اس میں انسانوں کی گفتگو میں سے کوئی بات درست نہیں، یہ تو صرف تسبیح تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں زمانے جاہلیت کے قریب ہوں اور اب اللہ اسلام کو لے آیا ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ میں نے کہا اور ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، یعنی دل کے بہلاوے کی بات ہے، یہ ان کو کام سے ہرگز نہ روکے۔ مسلم۔ الثقل الثقل سا پر پیش مصیبت اور ناگہانی آفت، لیکن مذکورہ فقرے میں یہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے۔ ماں کا ہر نی مجھے ڈانٹا جھٹکا نہیں۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں جس طرح کوئی اور گفتگو منع ہے، اسی طرح چھینک کا جواب دینا بھی صحیح نہیں ہے، البتہ خود چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہہ لے تو جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حمد ہے جو نماز میں جائز ہے۔ دوسرے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت احسن طریقے سے انجان لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے اور ان کی لا علمی پر مبنی کوتاہیوں پر درستی اور پرختگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اس میں منتظمین اور دعات مبلغین اسلام وغیرہ کے لیے بڑا سبق ہے۔ تیسرے، نجومیوں سے مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ممانعت ہے۔ چوتھے، بدشگونی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ کہانت اور بدشگونی دونوں جاہلیت میں عام تھی، اسلام نے آ کر ان کو ختم کیا، لیکن جاہل مسلمانوں میں یہ خرافات اب پھر عام ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ حدیث نمبر 702 حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ مؤثر واعظ ارشاد فرمایا کہ جس سے دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ارباز رضی اللہ عنہ نے ساری حدیث بیان کی۔ یہ حدیث مکمل طور پر باب الامر بالمحافظہ علی السنہ میں گزر چکی ہے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ فوائد۔ اس میں وضاحت ہے کہ بہترین واعظ اور خطبہ وہ ہے جو مختصر، جامع اور مؤثر و نافع ہو۔ باب نمبر 92 وقار اور سکینت کا بیان۔
अल्लाह ताला ने फरमाया, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब इनका वास्ता जाहिलों से पड़ता है तो सलाम कहकर गुजर जाते हैं। फायदा आयत। डग डग बढ़कर चलना, गंवारपन की और आहिस्तगी से चलना वक़ार व इत्मीनान की दलील है। इसी तरह जाहिलों से उलझना भी वक़ार व मतानत के खिलाफ है। अल्लाह के बंदे जाहिलों से भी मुखातिबत तर्क करके खामोश होकर चले जाते हैं। हदीस नंबर 703। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कह मार कर हंसते हुए नहीं देखा कि आप वसल्लम के गले के कौवे नजर आने लगे। आप वसल्लम सिर्फ मुस्कुराया करते थे। बुखारी व मुस्लिम। लिहाद की जमा है हलका कौवा, यानी गोश्त का वो टुकड़ा जो मुंह के आखिरी बालाई हिस्से पर होता है। फवाइद। ज्यादा हंसना अल्लाह से गफलत की दलील है, इसीलिए कुरान में फरमाया गया है, तौबा, ये हंसे थोड़ा रोए ज्यादा। अलावा अजी खिलखिला कर और ठट्ठे मार कर हंसने से इंसान का वकार और इसका रुअब व दबदबा खत्म हो जाता है। इसलिए बावकार, संजीदा और अस्हाब शरफ व फजल इस तरह हंसने से गुरेज करते हैं गो इनके लबों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। मतलब ये कि हंसने में भी दायरा अदब से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाब नंबर 93। नमाज, इल्म और इस किस्म की दीगर इबादत की तरफ सकीनत और वकार के साथ आना मुस्तहब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो शख्स अदब की चीज़ों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की है अज़मत रखे तो ये फ़ैल दिलों की परहेज़गारी में से है। फ़ायदा आयत। शाइर शाइरा की जमा है, इससे मुराद दीन के अवामिर व अहकाम है जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, जिनका अदब व एहतराम यानी इन पर अमल ज़रूरी है। जिस तरह ये सारी आमाल बजाय खुद अदब व एहतराम के काबिल हैं, इसी तरह इनकी अदायगी और बजा लाने में भी वकार और सकीनत के पहलुओं को मलहूज रखा जाए। यही बाब का मुफाद है। हदीस नंबर 704। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो तुम इसके लिए दौड़ते हुए न आओ, आराम से मामूल की चाल चलते हुए आओ और सकीनत इख्तियार करो। जो नमाज इमाम के साथ पालो वो पढ़ लो, और जो तुमसे फौत हो जाए उसे पूरा कर लो। बुखारी व मुस्लिम। मुस्लिम ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज ज्यादा बयान किए हैं, तुम्हारा एक आदमी जब नमाज का कसब कर लेता है तो वो नमाज की हालत में ही शुमार होगा। फवाइद। इससे मालूम हुआ कि जमात के हुसूल के लिए दौड़ भाग कर आना ममनू है, क्योंकि ये वकार के खिलाफ है, जबकि हुक्म वकार और सकीनत इख्तियार करने का है, बिलखुसूस नमाज वगैरह के लिए आते वक्त। पॉइंट सेकंड। जब इंसान घर से वजू करके निकलता है तो इसी वक्त से उसे नमाज में शुमार कर लिया जाता है। पॉइंट थर्ड। इमाम के साथ मिलने वाली रकात मुक्तदी की पहली रकात होगी, बाद में जो अदा करेगा वो आखिरी रकातें होंगे। हदीस नंबर 705। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वो अरफे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात से वापस लौट रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे सख्त डांट मार और ऊँटों के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कोड़े के साथ इनकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए लोगों, सकीनत इख्तियार करो, यानी सुकून से चलो, इसलिए कि
तेज रफ्तारी नेकी नहीं है। बुखारी और मुस्लिम ने भी इसका कुछ हिस्सा रिवायत किया है। अलबिर नेकी और ज़ाद के साथ है जिससे पहले या और हमजा मकसूरा है, माना है तेज रवी। फवाइद दफा के माना धकेलने के होते हैं, इसीलिए ये मुतआदी है, लेकिन इसका आम इस्तेमाल मफूल के बगैर होता है, इसलिए ये लाजिम के मुशाबा है। अरफात से वापस लौटने की दफा के लफ्ज से इसलिए ताबीर किया है कि इस रोज लोग अरफात से इस तरह लौटते हैं गोया इन्हें धकेला जा रहा है। इसमें भी वकार और सुकून इख्तियार करने की और तेज रवी से इज्तिनाब की तलकीन की है। मनासिक हज की अदायगी के दौरान मुकामात हज पर इस हिदायत पर अमल करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हर जगह इंसानों का बेपनाह हजूम होता है। ऐसे में एक दूसरे को धकेल कर खुद तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश दूसरों की हलाकत का बायस होती है, जिसका मुशाहिदा हर साल अयाम हज में होता है। लेकिन मुसलमानों में सब्र व ज़ब्त की कमी और अपने मजहब की अखलाकी हिदायत से नाआशनाई या बेइतनाई की वजह से ये मसला हल नहीं हो पाता, और सऊदी हुकूमत के बेमिसाल और वसी इंतजामात के बावजूद इंसानी जानों का ज़िया तकरीबन एक मामूल सा बन गया है। अल्लाहुल मुस्लिमीन। बाब नंबर 94, मेहमान की इज्जत व तकरीम करने का बयान। अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या तेरे पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बात पहुंची है? जब वो इनके पास गए तो उन्होंने सलाम किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में कहा सलाम, और कहा अनजाने लोग हैं। फिर अपने घर की तरफ चले और एक पला हुआ बछड़ा ढूंढ कर लाई और इनके करीब किया। फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? और फरमाया अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम के पास इनकी कौम दौड़ती हुई आई, और इससे पहले भी वो बुराइयों का इर्तिकाब करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है, बस अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रसवा न करो। क्या तुम में से कोई भी समझदार आदमी नहीं है? फायदा आयात कुरान मजीद के इन दोनों मुकामात पर मेहमानों की इज्जत व तकरीम का जिक्र है, जिसे इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला ने इकराम ज़ईफ का इस्बात फरमाया है। मजीद वजाहत के लिए ज़ैल की अहादीस मुलाहिज़ा हो। हदीस नंबर 706, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसे अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, और जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि सिला रहमी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करे, और जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसको चाहिए कि भलाई की बात कहे या फिर खामोश रहे। बुखारी व मुस्लिम। फवाइद मेहमान की इज्जत करने का मतलब है खंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल करे, हस्ब इस्तिताअत खुश दिली से इसकी मेहमान नवाजी करे और इसकी आराम व राहत का ख्याल रखे। सिला रहमी का मतलब रिश्तेदारों के हकूक़ की अदायगी और इनके साथ हुस्न सलूक करना है। गुफ्तगू कम करने का मतलब है कि बेफायदा और फजूल बातों से गुरेज करे। जुबान को जिक्र इलाही, तौबा व इस्तिगफार और कलमा खैर के लिए वक़्फ़ रखे या फिर ज्यादा खामोश रहे। ये तीनों खूबियाँ इन लोगों की बतलाई गई है जो सही मानों में अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, जिसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये है कि इनमें कोताही करने वालों का ईमान नाक़िस और खाम है। हदीस नंबर
7. حضرت ابو شریح خوالد بن عمر خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے تو اس سے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور رات، یعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کرے، اور مہمان نوازی 3 دن ہے، پس جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کا گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ فوائد: اس میں مہمان نوازی کی مزید آداب و حدود کی وضاحت ہے کہ پہلے دن اور رات عمدہ کھانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد 2 دن مزید معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے۔ 3 دن کے بعد مہمان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، تاہم اگر وہ نہ جائے تو اس کے بعد مہمان نوازی بطور صدقہ ہوگی۔ باب نمبر 95 خیر کی خوشخبری دینے اور مبارکباد کہنے کے استحباب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ان بندوں کو خوشخبری دے جو بات کو سنتے ہیں پھر اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، جیسے برائی کرنے والے کو معاف کر دینا اور تنگ دست مقروض کو مہلت دینا یا قرض ہی معاف کر دینا وغیرہ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت، رضامندی اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ نیز فرمایا اور تم کو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا پس ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بچے کی خوشخبری دی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اور فرمایا اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی پس وہ ہنسی اور ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، اور فرمایا پس زکریا کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے عیسیٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ہے۔ الآیہ۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے کلمہ ان سے ہوئی ہے جو ایک اعجازی ولادت ہے، اور اس باب میں متعدد مشہور آیات ہے، احادیث بھی بکثرت ہے اور صحیح میں مشہور ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہے۔ حدیث نمبر 708 حضرت ابو ابراہیم اور ابو محمد اور ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا جس میں نہ شور ہوگا نہ تکان۔ بخاری و مسلم۔ سب سے یہاں مراد جوف دار درمیان سے خالی موتی ہے۔ صخب شور غدہ اور نصب تکان تھکاوٹ۔ فوائد: اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے علاوہ خیر کی خوشخبری دینے کا اثبات ہے۔ حدیث نمبر 709 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور باہر نکل گئے، اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کر رہوں گا اور آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے اس طرح کا رخ فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پس میں آسم کی بابت پوچھتا ہوا آسم کے پیچھے نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ بر عریس قبا کے قریب ایک باغ پر پہنچ گئے۔
मैं दरवाजे पर बैठ गया। जब रसूल सल्लल्लाहु ने क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू फरमा लिया तो मैं आप की तरफ गया तो देखा कि आप बेबी अरीस की मुंडेर पर बैठे हैं। बुखारी की एक रिवायत में अला कफ़ुल बिर ये अल्फाज है और पिंडू को नंगा करके कुएं में लटकाया हुआ है। मैंने आपको सलाम अर्ज किया और फिर वापस आकर दरवाजा पर बैठ गया और मैंने दिल में कहा कि मैं आज ज़रूर रसूल का दरबार रहूंगा। इतने में हज़रत अबू बकर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? उन्होंने फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने कहा ठहरिए। मैं फिर गया और कहा या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। और सबने फरमाया इनको इजाज़त दे दो और इनको जन्नत की खुशखबरी भी दे दो। चुनांचे में आया हत्ता कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर तशरीफ लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंबर पर आसन की दाएं जानिब बैठ गए और अपने दोनों पैर कुएं में लटका लिए जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और अपनी पिंडलियां नंगी कर ली। मैं फिर वापस आकर दरवाजे पर बैठ गया और मैं घर से निकलते वक्त अपनी बाई को वजू करता छोड़कर आया था कि मुझे खुद ही आकर मिल जाएगा। मैंने दिल में कहा कि अगर अल्लाह ताला फलां यानी इसके बाई के साथ भलाई का इरादा फरमाएगा तो इसको यहाँ ले आएगा। इतने में कोई शख्स आया और दरवाज़ा हिलाने लगा। मैंने कहा कौन है? उसने कहा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। बस मैंने कहा ज़रा ठहरिए। मैं फिर रसूल सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु को सलाम अर्ज किया और कहा ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। आप सबने फरमाया इन्हें इजाज़त दे दो और बता दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ियल्लाहु को जन्नत की खुशखबरी भी सुनाते हैं। आप सल्लल्लाहु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की खुशखबरी भी सुनाते हैं। चुनांचे वो तशरीफ लाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के साथ मुंडेर पर आप की बाई जानिब बैठ गए और अपने दोनों पैर कुएं में लटका लिए। मैं फिर वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया और दिल में कहा अगर अल्लाह ताला फलां यानी इसके भाई के साथ भलाई का इरादा फरमाएगा तो इसे यहाँ ले आए। इतने में कोई और शख्स आया। उसने दरवाज़ा हिलाया। मैंने पूछा कौन है? उसने कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने कहा अच्छा ठहरिए और मैंने नबी करीम को आकर इत्तला दी। आज में फरमाया इन्हें इजाज़त दे दो और एक बलवा हादसे के साथ जो इन्हें पेश आएगा जन्नत की खुशखबरी सुना दो। चुनांचे में आया और इनसे कहा तशरीफ लाई और रसूल आपको एक हादसे के साथ जो आप सबको पेश आए आप को पेश आएगा जन्नत की खुशखबरी देते हैं। बस वो अंदर तशरीफ लाए तो देखा कि कुएं की मुंडेर पुर हो गई है। इन्हें नबी सल्लल्लाहु की दाई बाई दोनों जानिब जगह नहीं है। बस वो आप सल्लल्लाहु के सामने दूसरी जानिब बैठ गए। आपके सामने दूसरी जानिब बैठ गए। हज़रत सईद बिन मूसा मशहूर ताबी और हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करने वाले रावी फरमाते हैं कि मैंने इससे इनकी कब्रों की तावील की यानी अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु कब्र में भी इसी तरह साथ होंगे जबकि उस्मान की कब्र अलग होगी। बुखारी और मुस्लिम। और एक रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दरवाजे की निगरानी का हुक्म फरमाया और इसमें ये भी है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु को जब खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने अल्लाह की हमद बयान की और फरमाया अल्लाह ही इस लायक है कि इससे मदद तलब की जाए। वजह वाव पर ज़बर और जीम पर तजदीद रुख किया। बेरे अरीस हमजा पर ज़बर और रा पर ज़ेर और इसके बाद या साकिन और फिर सीन ये मुनसरिफ है और बाज़ के नज़दीक गैर मुनसरिफ। कफ क़ाफ पर पेश और फा पर तजदीद। कुएं के इर्द गिर्द चबूतरा या मुंडेर अला रिस्लिक रा पर ज़ेर मशहूर है और बाज़ के नज़दीक रा पर ज़बर है। ज़रा ठहरे और इंतज़ार फरमाए। फ़वाइद
इस हदीस का ताल्लुक बाब से वाज़ेह है कि इसमें भी खुशखबरी देने का इस्बात है। पॉइंट सेकंड, खुलफाए सलासा रज़ियल्लाहु अन्हुम इनकी जन्नती होने की बशरत दे दी गई, इसके बाद भी इनके ईमान में शक करना शिकावत अज़ली की निशानी नहीं तो और क्या है। पॉइंट थर्ड, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बाबत जिस बलवे की पेश गोई फरमाई वो इनकी खिलाफत के आखिर में पेश आया, जबकि अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी और इसकी मकरू और बेबुनियाद इसके मकरू और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से मुतासिर फसादी ग्रोह ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु का मुहासरा कर लिया और बिलआखिर आप रज़ियल्लाहु को शहीद कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। पॉइंट फोर्थ, बेदारी के आलम में भी ताबीर व ताबीर जायज़ है, इसे फरासत कहा जाता है। अलावा अज़ी तमसील में बिल्कुल वजूह मशाबत या बराबरी ज़रूरी नहीं, चनाचे शेखैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजरा आयशा में और हज़रत उस्मान जन्नतुल बकी में मदफून है। हदीस नंबर 710, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे थे और हमारे साथ लोगों में हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। बस अचानक रसूल हमारे दरमियान से उठकर चले गए और हमारे पास वापस आने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर फरमाई, तो हम डर गए कि हमारी गैर मौजूदगी में आप सबको कत्ल न कर दिया गया और हम घबरा कर उठ खड़े हुए और मैं सबसे पहले घबराने वाला था। बस मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला, यहाँ तक कि मैं बनी नज्जार अंसार के बाग की चार दीवारी पर पहुंच गया। मैं इसके इर्द गिर्द घूमा कि मुझे किसी दरवाजे का सुराग मिल जाए, लेकिन मुझे कोई दरवाजा नहीं मिला। ताहम एक छोटे से नाले पर नजर पड़ी जो बाग से बाहर एक कुएं से निकलकर बाग के अंदर जा रहा था और रबी छोटी सी नहर या छोटे से नाले को कहते हैं। बस मैं इसमें से सिमटा कर अंदर रसूल वसल्लम के पास पहुंच गया। आपने मुझे देखकर फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया, क्या बात है? मैंने कहा, आप सब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे। बस आप सब वहां से उठकर चले गए और वापसी में आप सब ने देर फरमा दी, तो हमें डर महसूस हुआ कि कहीं आप सबको हमारी गैर मौजूदगी में कत्ल न कर दिया गया हो। चुनांचे हम घबरा उठे। घबराने वालों में सबसे पहला आदमी मैं था। बस मैं इस बात तक आ गया और मैं अंदर दाखिल होने के लिए इस तरह सिकड़ गया जिस तरह लोंडी सिमटती सिकड़ती है और लोग मेरे पीछे हैं। आप सबने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने दोनों जूते देकर इरशाद फरमाया कि जाओ, मेरे ये दोनों जूते साथ ले जाओ। इस बाग की दीवार के बाहर जो भी मिले, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस पर इसके दिल में पूरा यकीन हो, तो इसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। और पूरी हदीस जिक्र की। मुस्लिम। अब रबी छोटी नहर और ये नाला है, जैसे कि हदीस में इसकी तफसीर इसके साथ की है। इहतफज़त, ये रा और जा के साथ दोनों तरह मरवी है। जा के साथ माना है मैंने सिमटाकर अपने वजूद को इतना छोटा कर लिया हता कि मेरे लिए नाले से अंदर जाना मुमकिन हो गया। फवाइद, ये मसला पहले वज़ाहत से बयान किया जा चुका है कि दिल की गहराई से अल्लाह पर ईमान रखने वाला अगर इसने शिरक का इर्तिकाब नहीं किया होगा तो वो यकीनन जन्नत में जाएगा या तो पहले मरहले में ही चला जाएगा। अगर अल्लाह की मशीयत हुई बसूरत दीगर सजा भुगत कर जन्नत में जाएगा। इसका दायमी घर जहन्नम नहीं जन्नत ही होगा। इस हदीस में खुशखबरी की इस बात के अलावा मोमिन के बहरहाल जन्नती होने की उम्मीद है।